Assalamu alaikum, sixth semester. As we have started teaching speaking skills, so just continuing our previous lecture, let's start it as we have studied about its definition, about the background knowledge and nature of speaking, and before that we studied about the goal of teaching speaking skills. Okay. So we having different views related to language teaching, as we studied about conversational discourse, teaching pronunciation, accuracy and fluency, and now we are going to study affective factors. Okay. So yeah, affective factor is one of the major obstacles learners have to overcome in learning to speak. Is the anxiety generated over the risk of learning things are wrong, stupid, or incomprehensible. So, affective factors, other than other factors, we are also having some obstacles whenever we are learning through speaking skill. So that is the actually would those obstacles does those obstacles do work? Generate anxiety over the risk of blurting things like outdate are wrong. Blurting things out that are wrong, like some things that are not that is some things that are not clear to us, and we hear such words, such verses in a wrong way, and or like we get a stupid kind of meaning or sound out of it, and incomprehensible, and that is ununderstandable for us too. So because of the language ego, that informs people that you are what you speak. Learners are reluctant to be judged by hearers. Over here, whenever we learn things through speaking, so over here we having such kind of language ego means mm, uh, mostly it is said that whenever we speak something, so it is considered that we actually think like that, we actually we having a personality like that, we think like that. ऐसा लगता है कि जैसे कि जो हम बोल रहे हैं, जबकि हम इसलिए बोलते हैं कि मतलब कि हम लर्न कर ले उस बोलने के थ्रू, लेकिन लोग अक्सर समझते हैं कि ये हमारी सोच है, हम जो बोल रहे हैं ये असल में हमारी सोच है। ठीक है। तो इसी वजह से हम थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि हमें कोई जज ना करे, मतलब स्पीकिंग के थ्रू अगर हम लर्न कर ले किसी चीज को, तो वो हम जज ना कर ले, हमें जज ना कर लिया जाए, लिसनर्स हमें हियर हमें जज ना कर ले। और जॉब एज टीचर इज टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ warm in embracing climate that encourage students to speak, however halting or broken their attempts may be। ठीक है। तो यहाँ पे है कि हम बीइंग अ टीचर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा यही मकसद होता है कि हम ऐसे वार्म, मतलब हम उनको वेलकम कर लें, उन सारे स्पीकर्स को जो स्पीकिंग के थ्रू लर्न करते हैं लैंग्वेज को। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि हम उनके लिए ऐसी फनी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर ले जिसमें वो स्टूडेंट्स इंकरेज हो कि वो बात कर ले उसी टारगेट लैंग्वेज के में वो बात कर ले। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि however हार्टिंग और ब्रोकन देयर अटेम्प्ट्स में भी, जितना भी मतलब वो हेसिटेंट हो या फिर वो स्लोली अटेम्प्ट करते हैं, या उनके अंदर हार्टिंग कहते हैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो, वो स्लो स्लो चुपके चुपके, या वो हेसिटेंट है, शर्मा के ऐसे हंस के, या फिर मतलब आधे अधूरे अल्फाज यहाँ पे है ब्रोकन देयर अटेम्प्ट्स में भी, चाहे वो मतलब इस तरह के
कुछ वर्ड्स बोले जो उनको भी पता हो कि वो गलत है और वो गलत हो भी, ठीक है, और फिर भी वो मतलब अटेम्प्ट कर ले, तो इसी तरह हमें उन्हें फिर भी वो अटेम्प्ट कर ले, तो इस तरह के एनवायरनमेंट और इस तरह की इंकरेजमेंट हमें इस तरह के स्पीकर्स को बीइंग अ टीचर देना चाहिए। तो ये वो सारे एक्टिव फैक्टर्स में आता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन इफेक्ट। The greatest difficulty that learners encounter is attempt to speak is not the multiplicity of sound, ठीक है, तो यहाँ पे है multiplicity of sounds, words, phrases and discourse forms that characterize any language, but rather the interactive nature of the most communication। यहाँ पे है कि introduction to effect है, असल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट में एक मतलब देते हैं, या इस तरह का कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो एक जगह उनका एक मतलब होता है, दूसरी जगह उनका उसका दूसरा मतलब होता है। तो ये डिफरेंट फ्रेजेस या डिस्कोर्सेस या प्रोवर्ब्स, तो इसीलिए भी बंदा जो है वो थोड़ा सा उसके लिए ये इंटरेक्शन इफेक्ट मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो जब बात करता है तो हेसिटेंटली करता है, और यही चीजें कि एक जगह दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन फ्रेजेस, साउंड्स एंड डिस्कोर्स एंड वर्ड्स, कि वो खुद वो क्लियर नहीं होते बिकॉज दे आर लर्नर्स, वो अभी लर्न कर रहे होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि एक्चुअली बट रादर द इंटरेक्टिव नेचर ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेशन, वो क्या करते हैं, दे यस दे डू फॉलो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन के जो उस इनका इंटरेक्शन का जो असल में नेचर है वो तो वो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन विद लॉट्स ऑफ हेसिटेशन और लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज दे डू फेस के ऐसा ना हो कि हम बोलते हुए ये गलती करें या फिर वो गलती करें, ठीक है, तो उनको एक खौफ एक डर सा होता है लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, ठीक है, और अक्सर ये खौफ इसलिए नहीं होता कि लोगों से होता है, वो इसलिए होता है कि वो क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो साउंड, जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, इज दैट करेक्ट और नॉट, ठीक है। Conversation are collaborative as participants engage in their, let me ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ रही, कन्वर्सेशन आर कोलैबोरेटिव एज पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग। तो कन्वर्सेशन आर कोलैबोरेटिव मतलब जब आप ऑब्वियसली स्पीकिंग के थ्रू लर्न करते हो तो यहाँ पे कोलैबोरेशन चाहिए, कन्वर्सेशन होगी बीच में दो बंदों के बीच में, जब आप स्पीक करते हो तो कोई लिसनर होगा, वो लिसनर आपको फिर रिप्लाई भी करेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट्स, एक बंदा नहीं दो बंदे, अब लिसनर है तो उसमें एक बंदा, लिसनर तो सारे, मैं लिसनर हूँ एंड समवन एल्स इज स्पीकर, और मैं सिर्फ लिसन कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्टिव तो नहीं है, एक्टिवली नहीं है, लेस एक्टिवली है, ठीक है, ये फुल एक्टिवली नहीं है, लेस एक्टिवली है, लेकिन पैसिव भी नहीं है। तो यहाँ पे इंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, तो हम क्या करते हैं कि स्पीकर जो है उसका लिसनर जरूर उसको बीच में इंटरप्ट करेगा फॉर व्हाट पर्पस, कि अगर उनको किसी बात की समझ नहीं आई या फिर उन्होंने उन्हें अच्छे से सुना नहीं तो वो कहेंगे प्लीज रिपीट, लाइक वो इस तरह के अगेन वो इंटरप्शन करेंगे और एक किस्म की निगोशिएशन होगी बीच में उस, क्योंकि ये कन्वर्सेशन, स्पीकिंग कन्वर्सेशन के थ्रू होती है, आप कन्वर्सेशन करोगे तो स्पीकिंग होगी, आप एक साइड से स्पीकिंग करोगे तो ऑब्वियसली कोई लिसनर जरूर बीच में, उनके कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे जो बीच में पूछेंगे, जिस तरह के लिसनिंग स्किल में आप लोगों से मैंने कहा था कि बीच बीच में भी आप पूछ सकते हो जब आपको कोई वरीज हो, लेकिन आप पेन और पेपर लेके आप जितने भी आपके वरीज होते हैं आप लिसनिंग से रिलेटेड जो आपने लिसन किया तो उसको नोट डाउन कर ले, एंड एट द एंड ऑफ लिसनिंग सेशन आप पूछ ले, या बीच में भी in many places you are allowed on the basis of all कि जो स्पीकर है आपको जो चीज सुना रहा है, if that person is lenient enough और cooperative है तो पूछ सकते हो, ठीक है। So for the learner the matter of what you say is often eclipsed by conventions of how to say things, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये जो सुनने का कहने का जो मकसद है, ठीक है, सुनने का जो मकसद है, द मैटर ऑफ व्हाट यू से, सॉरी, कहने का जो मकसद है इज ऑफन इक्लिप्स्ड बाय कन्वेंशंस, इक्लिप्स का मतलब है कि वो थोड़ा सा मान पड़ जाता है, किस चीज से, कन्वेंशंस ऑफ हाउ टू से थिंग्स, कन्वेंशंस की वजह से वो थोड़ा सा मान पड़ जाता है। अब कन्वेंशंस क्या है, आप किसके सामने, कहाँ पर, थे से, किस तरह,
कौन से वाले अल्फाज का इस्तेमाल करोगे। लाइक अगर आप एल्डर्स से बात कर रहे हो, स्पीकिंग स्किल है ना, तो फिर आप कैसे बात करोगे, टीचर से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, छोटों से बात कर रहे हो, फीमेल से बात कर रहे हो, मेल से बात कर रहे हो, तो ये सारे इक्लेप्स्ड मतलब ग्रैंड पड़ जाती है, इसमें थोड़ा सा रिकवर्ड मतलब ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं कन्वेंशंस के बेस पे कि आप लोगों ने कहाँ कैसे किससे किस तरह के अल्फाज में बात करनी है, इस चीज की वजह से when to say, when to speak and other in other discourse constraints, जो दूसरे हम बहस मुबाहिसा करते हैं और उसमें हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट हमारे लिए वो रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं कि हमें एक किस्म की बाउंड्रीज और लिमिटेशन रखे जाते हैं हमारे आगे। ठीक है, लेट मी चेक कि मैंने पॉज रिमूव भी किया था कि नहीं। अब जो है डेविड नोनेन in 1991 notes are further complications in interactive discourse, कि जब आप दूसरे के साथ बात करते हो तो इसके अंदर और कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ठीक है, व्हाट ही कॉल्स द इंटरलोकेटर इफेक्ट, और जिसको वो कहता है इंटरलोकेटर। ठीक है, इफेक्ट उसको कहते हैं इंटरलोकेटर, मतलब बीच में जो इंटरप्शन होती है। For the difficulty of speaking task as gauged मतलब उसको measure किया जाता है by the skills of one's interlocutor। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली मम्मा ने बीच बनाना दे दिया है कि आप ये खा लो, और मेरा गला इतना खराब है, सो आई एम जस्ट ठीक है। व्हाट ही कॉल्स द इंटरलोकेटर इफेक्ट्स, के इंटरेक्टिव डिस्कोर्स में कुछ हमारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जो इंटरलोकेटर कहते हैं, जो बोलने वाला बंदा होता है उसको जो फैक्ट्स मतलब जो उसको जो डिफिकल्टी वो फेस करता है, एंड द डिफिकल्टी टू स्पीक ऑफ अ स्पीकिंग टास्क एज गेज्ड बाय द स्किल्स ऑफ वंस इंटरलोकेटर। ठीक है, कि जो स्पीकिंग टास्क के अंदर जो डिफिकल्टी वो बंदा फेस करता है, तो उसको गेज किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है और डिफरेंट स्किल्स के थ्रू। जब वो बंदा इंटरलोकेटर होता है, जब वो बातचीत करता है, जब वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। इंटरलोकेटर का मतलब है जब वो कोई डिबेट करता है, इंटरलोकेटर का मतलब डिबेट करना, बात करना, बहस करना। ठीक है, बहस करने वाला इंटरलोकेटर है, तो बहस करने वाला। ठीक है, in other words, one learner's performance is always colored by that of person interlocutor he or she is talking with। ठीक है, इन शॉर्ट बात ये है कि जो बात करने वाला बंदा है उसका सबसे ज्यादा फोकस अपने बातों से ज्यादा फोकस उस हेयर का होगा, उस लिसनर का होगा जो उसे सुन रहा है। तो उसको अपने माइंड में रख के वो कंटेंट का चुनाव करेगा, सिलेक्शन करेगा, और उसी के बेस पे वो डिक्शन यूज करेगा, फ्रेजेस और वर्ड्स को तलाश करेगा, उसको माइंड में रखते हुए वो फर्दर उसमें अपनी जो उसका किस तरह के वो बात अल्फाज और फ्रेजेस यूज कर रहा है, किस तरह के मुहावरे यूज कर रहा है, किस तरह के कंटेंट के ऊपर वो बहस कर रहा है, इस चीज के ऊपर उसका ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, कि ये जो लिसनर है क्या वो इस लेवल है का है जो वो मुझे समझे। ठीक है, और या मतलब अगर कि वो मुझे जज ना कर ले मेरे थॉट से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी स्पीकिंग मेरी स्पीच से। ठीक है, इंटरलोकेटर सबसे ज्यादा इसी बात के ऊपर फोकस करता है। तो ये भी एक इंटरप्शन है ना, आपकी माइंड जो है वो डाइवर्ट हुई है आपके स्पीकिंग स्किल के बजाय उस लिसनर के ऊपर। ठीक है,
आगे है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्नर स्पीकिंग। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है एक लर्नर के स्पीकिंग पावर्स को, स्पीकिंग पावर को। यस, ठीक है। So the six factors below suggest that any learner who really wants to can learn, really wants to, ठीक है, so that person can learn to pronounce English clearly and comprehensively। ठीक है, तो नीचे जो हमारे पास वो है फैक्टर से उसको स्टडी करेंगे तो एक बंदा अच्छे से इंग्लिश साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, ठीक है, और उसको समझेगा भी। एज द टीचर you can assist in the process by gearing your plane by accelerating your plane or starting your plane or to give gear up। gear is up to, हमारे पास 4 किस्म के gear होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे हाई स्पीड का जो गियर होता है, अब तो ऑटोमेटिक कार्स आ गए उसमें, तो अब उसमें ड्राइव होता है और सारी की सारी वो जो है एक्सेलरेशन के ऊपर आ गई। एक्सेलरेटर आप ज्यादा दबाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, और आप उसको सिर्फ ड्राइव मोड पे रखोगे, ड्राइव गियर पे रखोगे, ठीक है। योर प्लेन एंड अनप्लेन्ड इंस्ट्रक्शन टूवर्ड्स द सिक्स्थ फैक्टर। तो एक टीचर होने के नाते आप लोगों ने अपने स्पीकर को आपने ही गियर अप करना है, ठीक है, कि आपने उनके लिए ऑलरेडी एक प्लेन बनाया है, उस प्लेन के अंदर वो स्पीच कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, एक स्पीकर जो है वो स्पीकिंग कर रहा है, जो लर्नर है असल में, ठीक है। और या फिर वो अनप्लान्ड है, वो खुद से आपने उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया है और उसी पे वो डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अप टू द टीचर, जो इंस्ट्रक्टर है उसी पे बेस करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि वो कितनी क्योंकि एक स्किल है, मतलब एक इंस्ट्रक्टर एक ऑब्वियसली टीचिंग और लर्निंग हो रही है ना इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें स्पीकिंग स्किल के थ्रू हो रही है। जब उसके थ्रू हो रही है तो टीचर जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, और स्टूडेंट जो है वो जो जो स्टूडेंट है जो इसको स्पीच के डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, वो लर्नर ठहरा, ठीक है। तो उसके लिए टीचर ही प्लेन करेगा सारे स्ट्रेटजीज और वही अनप्लेन करेगा, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज क्या है, ये भी एक किस्म का हमारे पास बैरियर बनता है, ठीक है। At times, the native language is clearly the most influential factor affecting a learner's pronunciation. Yes, आप अगर आपका एक्सेंट जो है आप सबसे ज्यादा आपके लैंग्वेज लर्निंग को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा वो आपके अपना नेटिव लैंग्वेज का एक्सेंट करेगा, ठीक है। इफ हम कहते हैं ना, ये जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं या फिर हम कहते हैं अफ्रीदी लोग बड़े फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए फ्लुएंट होते हैं, फ्लुएंट इज कि उसके अंदर फ्लो होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी समथिंग एल्स, वो भी गलत हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट कंटेंट में गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लुएंसी उनके अंदर इस उनके अल्फाज या एक्सेंट उनका इतने इसलिए प्रॉपर होता है क्योंकि उसका उनको लोगों का जो नेटिव वो है लैंग्वेज है और या फिर डायलेक्ट और एक्सेंट है, तो वो मतलब ऐसा है जिस तरह के अगर हम पश्तो बोलते हैं तो हमें इतना वो नहीं करना पड़ता है, मतलब इतने जुबान को मुंह को इतना ठहरा वेरा नहीं करना पड़ता है, जबकि उनकी जो एक्सेंट है, ठीक है, जिस तरह के हम बोलते हैं ना पश्तो में तकिए को हम बोलते हैं बालाख, तो वो कहते हैं बोलाख, तो वो ऑब्वियसली अगर हम फुटबॉल बोलेंगे ना, इस तरह बालाख कहने वाले अगर फुटबॉल बोलेंगे तो वो यहाँ पर हम थोड़े से इनकरेक्ट आते हैं, लेकिन अगर वो ऑलरेडी बोलाख बोलते हैं तो फिर फुटबॉल ही बोलेंगे, ठीक है, तो उनका एक्सेंट वो ठीक ही रहेगा। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, होप सो कि आप गेट कर ले। If the teacher is familiar with the sound system of learner's native language, ठीक है, अगर टीचर को पता है कि ये अफरीदी है या फिर खटक है या फिर वजीरिस्तान से है, शाह साउंड बहुत बोलता है, she will be better able to diagnose what students difficult what are the students difficulties, ठीक है। तो टीचर को अगर पता है कि इनका बैकग्राउंड कहाँ से है, वो अगर वजीरिस्तान से है तो सबसे ज्यादा वो शाह साउंड करेगा, जैसे कि वो हम कहते हैं ना पश्तो में खजा, तो वो कहते हैं शजा, हम कहते हैं कि हम ठीक है खयम, तो वो कहते हैं शायम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनके लिए वो जो खास साउंड होगा जैसे कि हेयर, तो वो कहेगा शेयर, लाइक थोड़ा सा वहाँ उन लोगों को डिफिकल्टी होगी, ठीक है। वैसे देर इज नो साउंड फॉर खा इन इंग्लिश, ये खा हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज में मौजूद है, ठीक है, ये खा साउंड, और अरबिक में भी है, होप सो अरबिक में भी है, मे भी अरबिक में भी है, ठीक है, हाँ जी, अरबिक में भी है, ठीक है।
होप सो होगा, आई एम नॉट श्योर, सॉरी टू से। मुझे अरेबिक का इतना वो नहीं पता, क्योंकि हमने जब सिपारा पढ़ा था तो उसमें बाकायदा हमारे पास हा था और खा भी था, ठीक है। हलवे वाला हा तो अरेबिक में भी है, और एक हम कहते हैं खरगोश वाली, वो खरगोश वाला खा, ठीक है। अच्छा, जब मेरे वालिद, हमारे वालिद साहब, अल्लाह उनकी मागफिरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जब वो हमें अलिफ बा था, जब मैं बहुत छोटी थी, और जब मेरे और निबलिंग, मेरे और वो जो कजन्स हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे, तो उनको जब पढ़ाया जाता था हमारे साथ बिठा के ना, उस सिपारे का सबक, जो कुरान का सबक होता है, वो कायदा वगैरह पढ़ाया जाता था, तो वो हमें किस तरह इन सारी चीज़ों की पहचान करवाते थे। वो कहते थे कि अब ये वो जो मर्द लोग थे ना, तो मतलब मेरे वाले साहब ऑब्वियसली वो उनका वो सब कुछ वो मर्दों वाला था, तो मतलब मर्दों वाला वो अंदाज था, मर्द थे तो मर्दों वाला ही अंदाज होगा कि वो कहते थे कि खा जो है, तो खा जिस तरह के खर होता है उसको हम बोलते हैं, उस तरह साउंड करता है, करते हैं हम लोग खा। और जिस तरह के हम कहते हैं ना हलवा, तो इस तरह हाँ, वो जो पश्तो में वो बोलते हैं पुकी वाला हाँ, हलवा वाला हाँ, ठीक है, इस तरह हमें वो इस तरह मेरे वाले साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस तरह पढ़ाते थे। अच्छा, मैंने तो ये सब क्या है, अब ये सारी मेरी जो एग्जांपल्स दी इसलिए दी कि मेरे वालिद साहब को पता था कि ये बच्चे खर को जानते हैं, हलवा को जानते हैं। अब खरगोश का हमें उर्दू का इतना नहीं पता, खरगोश तो हम तो उसको जब छोटे थे तो सोया बोलते थे, ठीक है। और जब बहुत छोटे थे, मतलब जब हम स्कूल नहीं जाते थे तब की मैं बात करी, जब हम सिर्फ घर में कायदा वगैरह पढ़ते थे, और मतलब कुरान पाक की सबक सिपारा वगैरह पढ़ते थे, तो उसके लिए मतलब तब हमें खरगोश का तो नहीं पता था, बहुत छोटे, मतलब जब ये बंदा यही कुछ 3 और 3.5 और 4 साल का होते, तो बंदे को तो नहीं पता होता कि वो तो उर्दू वर्ड है। तो हमें और खर का तो पता होता है कि ये खर है। अब हम जाके ना अपने निबलिंग्स को बोलते हैं कि वो खर नहीं जानते, वो डॉनकी जानते हैं। जब उनको कोई कहता है ना कि आपने जो वो बैड एक्ट करते हैं, तो हम उन्हें खर नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं डॉग। वो खर को सॉरी डॉनकी, तो वो खर को अच्छा वर्ड समझते हैं। यहाँ पे many L1 and to L2 carry overs can be overcome through a focus awareness and effort on the learner's part। जैसे कि आप लोग जब कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हो, तो मैं आप लोग को वो वर्ड रिपीट करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये चरसब्दा से है, ये सवाबी से है, ये मर्दान में भी हमारे पास बहुत सारे पश्तो स्पीकर्स के अंदर यही वो डिफिकल्टीज है कि वो हाँ और खा साउंड में फर्क नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना हमारी क्लास में, आपकी क्लास में भी एक वो स्टूडेंट है, वो होर बोलती है, होर को होर बोलती है, ठीक है ना, होप को होप बोलती है, ठीक है। तो खा को हाँ बोलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मुझे पता है, तो मैं जब whenever you commit mistake, तो इसी तरह अगर कोई इंस्ट्रक्टर के आगे जो लर्नर होगा, इंटरलोकेटर होगा, जब वो इस तरह के मिस्टेक्स कमिट करेगा, तो इंस्ट्रक्टर उसको ठीक कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एज, ठीक है। तो एज भी बहुत मैटर करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। Children are under the age of puberty generally stand an excellent chance of sounding like a native. ठीक है, if they have continued, exposure in authentic context। अब क्या है कि जो या यही कुछ पुबर्टी एज वाले वो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जो कि अभी मतलब उनका मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है, मतलब वो अभी छोटे बच्चों से भी निकल चुके होते हैं, या फिर निकल रहे होते हैं, और अभी वो एडल्ट्स में नहीं एंटर हुए होते हैं। जैसे कि 11 एज से लेके वो 14 तक वो पुबर्टी वाले उसमें रहते हैं, ठीक है, एज में रहते हैं। यही 10 से लेके 14-15 तक, ठीक है। तो वो पुबर्टी एज उनका होता है। तो इस वाले एज वाले जो वो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो उनका एक्सेंट बिल्कुल नेटिव लाइक होता है, ठीक है। क्योंकि उनका एक्सपोजर अगर अच्छे ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, तो फिर ऑब्वियसली उनका साउंड बड़ा अच्छा होता है, नेटिव लाइक होता है। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्टर उनको ऐसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज करवाए जहाँ पे इंग्लिश अच्छे स्टैंडर्ड एक्सेंट के साथ प्रोनाउंस बोली जाती है, ठीक है। While adults
will almost surely maintain a foreign accent. Obviously उनका हमेशा अपना जो बड़े होते हैं तो उनका अपना वही नेटिव मतलब other than their native accent of the target language से दूसरा उनका अपना native language accent उसमें मिला हुआ होगा, ठीक है। पता चलेगा कि ये बंदा पठान नहीं है अगर पश्तो सीखेगा कोई बड़ा बंदा, अगर बच्चा सीखेगा तो उसका कोई वो नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर अब देखे ना हम बड़े जाके वहाँ कोई और चाइनीज लैंग्वेज सीख ले तो हमारा एक्सेंट तो चाइनीज लैंग्वेज का नहीं है। अब छोटे बच्चे चले जाए तो वो फ्लुएंटली बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह वो चाइनीज लैंग्वेज को सीखेंगे और उसको यूज भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि देयर इज नो पर्टिकुलर एडवांटेज एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट है कि देयर इज नो पर्टिकुलर एडवांटेज एट्रीब्यूटेड टू एज, और कुछ और मतलब वो अपने एज की वजह से नो पर्टिकुलर एडवांटेज वो अपने एज की वजह से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, a 50-year-old can be as successful as an 18-year-old if all the factors are equal, ठीक है। अगर ये सारे फैक्टर्स इक्वल है तो एज का फिर इतना ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी वो एक्सेंट का हो जाता है, एज का फैक्टर है लेकिन इतना वो ज्यादा इफेक्टफुल नहीं होता है, ठीक है। एक 50 साल का बंदा भी उसी तरह लर्न करेगा दूसरी लैंग्वेज को जिस तरह की एक 18 साल के बंदा लर्न करता है, लेकिन अगर दूसरे फैक्टर इसमें इफेक्ट ना कर रहे होते हो तब। They believe that the younger the better is learning a language is a myth। ये एक मिथ है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोजर को अगर आप देखें तो ये मैटर करता है, ये वाला फैक्टर बहुत मैटर करता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एक्सपोजर, ठीक है। अब एक्सपोजर किस तरह की एक्सपोजर होनी चाहिए ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। वन कैन एक्चुअली लिव इन अ फॉरेन कंट्री फॉर सम टाइम बट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग विद द पीपल, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कई साल वो गुजार के आ जाते हैं लेकिन उन पर कोई असर एक जर्रा भर भी असर नहीं पड़ता है, वो अपनी जिस तरह के वो बन के गए थे वैसे ही वो होके आते हैं, ऐसे वो रह के आते हैं वहां बाहर के मुल्कों में, ठीक है। तो वो कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक्सपोजर हमको हम एग्जैक्टली वो नहीं कर सकते डिफाइन, तो इस वजह से नहीं कर सकते। रिसर्च सीम्स टू सपोर्ट द नोशन दैट द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेयर लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट कर सकती है कि ये मैटर नहीं करता कि आप 10 साल रहे हो, लेकिन इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंज ओवर द ईयर ऑफ द अदर कंट्री, तो फिर आपका 10 या 15 साल गुजारने का कोई मकसद नहीं रहा। लेकिन अगर आप एक हफ्ता 2-3 रह लो, लेकिन आप लोगों ने ये जहन में ये बात समा रखी है कि दैट आई विल एक्सेप्ट द चेंजेस व्हाटएवर चैलेंजेस आई विल फेस ओवर द ईयर इन ऑल दिस 1 week, so this will make a great difference, and for a purpose you are there just for a week. You are exposed to that very environment where the target language is spoken. So if class time spent focusing on pronunciation demands the full attention and interest of students, then they stand a good chance of reaching their goals. अगर सिर्फ क्लास टाइमिंग जो कि 45 एक घंटा का वक्त होता है, ठीक है, 45-50 या 1 घंटे का वक्त होता है, तो इसके अंदर भी एक अटेंटिवली एक बंदा एक स्टूडेंट जो है वो इस चीज को समझ ले और जो उनका स्टैंडर्ड एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन है उसको आपने अपना गोल बना ले, तो कोई मुश्किल नहीं है। वो इसी 40 to 45 और 1 hour के टाइम में भी that person can do, that student can make it so, ठीक है। नेक्स्ट है innate phonetic ability, तो ये भी है हमारे पास एक फैक्टर, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ जो ये मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है।
इसमें है often refer to as having an ear for language. अब ear का क्या मतलब है? innate phonetic ability, phonetic कहते हैं जो आप लोग का साउंड सिस्टम है. some people manifest a phonetic coding ability that others do not. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, किस चीज को? जो फोनेटिक कोडिंग होती है. तो प्रेजेंट द अर्ली लैंग्वेज. अच्छा, मैं दूसरी लाइन मैंने स्किप किया है. In many cases, if a person has exposure to a foreign language as a child, अगर वो छोटा बच्चा है और उसकी एक्सपोजर जो है फॉरेन लैंग्वेज में, एक बच्चा है तो उसकी एक्सपोजर है. This knack, this present, whether the early language is remembered or not. ठीक है, तो ये बात जो है ये उस बच्चे, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें ना, एयर की बात करते हैं, इनेट फोनेटिक एबिलिटी. अब छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसका बचपन से ही वो एक चीज को, एक साउंड को सुनने आ रहा है. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है नैक इज प्रेजेंट वेदर द अर्ली लैंग्वेज इज रिमेम्बर्ड और नॉट. तो यहाँ पे हमारे पास एक जो नेक का मतलब है जो नेचुरल स्किल है एट परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग एनी आर्ट, एनी टास्क, एनी एक्टिविटी. ठीक है, तो उसके लिए आपका जो इनेट स्किल होता है, जो आपका बचपन से, कि आप एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा, सपोज गेम्स की तरफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं, डाइवर्टेड नहीं होते, अट्रैक्टेड होते हैं. ठीक है, या उस तरफ डाइवर्शन उनकी ज्यादा होती है. ठीक है, गेम्स की तरफ. अब कुछ बच्चे हो तो ओपन डोर्स गेम जो है वो नहीं वो करते, वो जल्दी थक जाते हैं, वो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिक्कम्पेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, घिरना उठना. उनको अम्मी गुस्सा करती है जब कपड़े गंदे हो जाते, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंडोर गेम्स को पसंद करते हैं जहाँ पे कपड़ों का गंदा होना, गिरना, उछलना कूदना, शोर मचाना, ये चीजें ना हो. तो यहाँ पे यही चीज नेक कर रही है. ठीक है, उनके अंदर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अंदर और बाहर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है. ठीक है, तो एक्सपोजर अब किस तरह का है उनका, तो ये चीज उनका जो साउंड सिस्टम है उसको वो लीड कर रही है. ठीक है, दिस नेक इज प्रेजेंट वेदर द अर्ली लैंग्वेज इज रिमेम्बर्ड और नॉट. कि अगर बचपन में कोई चीज एक सुन लेता है, ठीक है, कोई आदत वो अडॉप्ट कर लेता है, मैनिफेस्ट कर लेता है, तो क्या वो बचपन वाली आदत सस्टेन रहती है कि नहीं, वो रिमूव हो जाती है. अदर्स आर सिंपली मोर अट्यून टू फोनेटिक डिस्क्रिमिनेशन. जो अब छोटे से जरा बड़े होते हैं, तो एडल्ट जो होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनका बस मकसद होता है कि हम दूसरी लैंग्वेज को लर्न कर ले, तो उनकी अटेंशन वो ज्यादा होती है और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अट्यून्ड एक्टिव होते हैं. टू फोनेटिक डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब है कि वो मतलब, अब मैं जो हूं ना, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि जब बंदा वो पश्चिम में बात करता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जो है किस इलाके से बिलोंग करेगा. मुझे एक्सेंट का पता चल जाता है, और ये अभी से नहीं है, मतलब बहुत पहले से मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा किस तरह के. अब मेरी क्या है, मैं अट्यून्ड हूँ टू देयर फोनेटिक साइट या फोनेटिक मैटर्स. जो भी फोनेटिक फोनीम्स है उनके, जो भी उनकी फोनेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ. सम पीपल would have you believe that you either have such a knack or you don't. ठीक है, you do not. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें बिल्कुल उन पे यकीन करना चाहिए कि उनके अंदर ये नेक जो नेचुरल एबिलिटी है टू अडॉप्ट और टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी. तो वो इसी नेट फोनेटिक एबिलिटी को वो एक, मतलब जो एयर वो फोनेटिक, वो एट्यून रहेंगे फोनीम्स, डिफरेंट फोनेटिकल डिस्क्रिप्शंस के ऊपर. ठीक है, तो ये एबिलिटी उनके अंदर हाईली डेवलप होगी और किसी के अंदर नहीं होगी. स्ट्रैटेजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन. अब एक स्ट्रैटेजीज के ऊपर, कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, however has proven that some elements of learning are a matter of an awareness of your own limitations combined with a conscious focus on doing something to compensate for those limitations. ऐसा ही मैंने अभी आपको बताया. अब एक बंदे को वो एक लिमिटेशंस उनके उनके सामने रखी गई है, कुछ कंडीशंस और टर्म्स रखे गए. उन्होंने कहा गया कि इसी कंडीशंस और टर्म्स के अंदर अंदर ही आपने एक परफॉर्मेंस करनी है, जबकि वो परफॉर्मेंस जो है
वो जरूर करना है, लेकिन इस टर्म्स और कंडीशंस के अंदर अंदर करना है। तो यहाँ पे जब वो बंदा वो परफॉर्मेंस करता है तो वो कॉशियस रहता है अबाउट ऑल सच terms and conditions and limitations, ठीक है। therefore if pronunciation seems to लुबना, यहाँ पे आप बाकायदा प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग्स देख ले, ठीक है, जिस तरह के मैंने बोर्ड पर मिस्टेक किया हुआ था आपकी तरह, ठीक है। तो seems to be naturally difficult for some students, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है कि बिल्कुल नेटिव लाइक एक्वायर कर ले। they should not despair, वो इस बात से थोड़ा सा मतलब नाउमीद, मायूस ना हो, नाराज ना हो, which disheartened ना हो, with some efforts and concentration they can improve their competence। तो अगर वो और मेहनत करे, ख्वारी करे और इस बात पे गौर करे तो वो इस एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर, अपने इस डिफिकल्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं इसके लिए अगर वो और मेहनत करे, ठीक है। लेट मी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज ईगो, तो यही बात है ना, ये हमारे पास फिफ्थ फैक्टर है। और इसी में आप लोगों को मैं टाइम एंड अगेन कह रही हूँ कि अदर इन्फ्लुएंस इज वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीकर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड द एक्सटेंट टू एंड the extent to which the language ego identifies with those speakers. Learners need to remind it ऑफ द इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उनकी अपनी कुछ लैंग्वेज इकोज होती है, जैसे कि कभी कभार वो कहते हैं कि नहीं, I really do not want to adopt in other language or to talk like other people, other accent people or things, ऐसा वो सोचते हैं, उनके अंदर कुछ ईगो से होती है, लाइक लैंग्वेज ईगो के वो अपने लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे, अपने एक्सेंट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। या इसी तरह, ठीक है। अनदर इन्फ्लुएंस इज वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीकर्स ऑफ द स्पीकर्स। अब आप लोग का एक बंदे के साथ आपका नहीं लगता और वो बंदा एक पिट वर्ड यूज करते हैं अपना, लेकिन जब कभी वो वर्ड आपके जहन में भी आ जाता है तो आप इसलिए वो वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि वो बंदा यूज करता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये उस नापसंदीदा बंदे की का पिट वर्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे ग्रजेस होल्ड हो जाते हैं, नेचुरल 22 किस्म के, मतलब हम नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज एंड द एक्सटेंट टू विच द लैंग्वेज ईगो आइडेंटिफाइज विद दोस स्पीकर्स। अब क्या हो जाता है कि स्पीकर्स का जो टारगेट लैंग्वेज होता है, ठीक है, उनके साथ हमारे कुछ ग्रजेस होल्ड होते हैं, कुछ एक हद तक, ठीक है। और हम समझते हैं कि अब अगर वो ये लैंग्वेज बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगी, ये वर्ड जो है फलां बोलता है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। लर्नर्स नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ द इम्पोर्टेंस। अब उनको ये नहीं चाहिए कि वो बंदा जो स्पीकर है नेटिव लैंग्वेज का, अंग्रेज बुरे लोग हैं तो हमें इंग्लिश भी नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने अपने जहन में इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड कंसर्न फॉर गुड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। Yes, some learners are not particularly concerned about their pronunciation. वो नहीं वो इंग्लिश बड़े अच्छे बोलते हैं, बड़े अच्छे डिक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो they never focus over their own pronunciation while others are, लेकिन कुछ लोग जरूर करते हैं, ठीक है। The access to learners intrinsic motivation, जो उनका जिबिलिटी, जो उनका कुदरती नेचुरल का जो उनका मोटिवेशन होता है, वो उनको प्रोफेल करता है, कंपेल करता है, उनको मजबूर करता है देम टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, कि वो अपने जो फर्दर जो एनहांसमेंट लाना होता है ना, तो उसमें वो अपने प्रोनाउंसिएशन में एनहांसमेंट ले आते हैं। विल बी परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ऑफ द सिक्स फैक्टर इन दिस लिस्ट। अगर आप लोग देख ले तो ये अंदर की ये जो इनेट मोटिवेशन है कि दूसरे अच्छी और सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्यों हम ना करें, क्यों ना हम भी करें, ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट है, इफ द मोटिवेशन एंड कंसर्न आर हाई, अगर उनका मोटिवेशन और इंकरेजमेंट जो है वो हाई है और उनका जो मकसद है वो भी हाई है, उन्होंने अपने गोल्स रखे हैं कुछ, देन द नेसेसरी एफर्ट विल बी एक्सपेंडेड इन परस्यूट ऑफ गोल्स। ठीक है, अब तो आगे क्या करना है, वो अपने गोल्स को इसी इसी नेसेसिटी को आगे वो प्रोफाइल करके वो अपने गोल्स को गेन करेंगे। एज द टीचर, जिस तरह के टीचर को क्या करना चाहिए, यू कैन हेल्प लर्नर्स टू परसीव और डेवलप दैट मोटिवेशन बाय शोइंग अमंग अदर थिंग्स। मुख्तलिफ चीज़ों से उनको ये चीज़ शो कराई जाए कि वो बिल्कुल अपने लर्नर्स की जो अंदर ये जो मोटिवेशन है, ठीक है, गुड प्रोनाउंसिएशन की ये जो कंसर्न रखते हैं, उसको वार्म अप कर ले। रिसीव, परसीव का मतलब सस्टेन करे, उनके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है। How clarity of speech is significant is shaping their self-image and ultimately in reaching some of their higher goals. ठीक है, how clarity of speech is significant in shaping their self-image, कि जिस तरह के वो जितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी इतने उतना ही उनके बारे में कहा जाए कि ये बंदा फला लैंग्वेज में बड़ा कॉम्पिटेंट है, तो उनकी सेल्फ इमेज होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अल्टीमेटली इन रीचिंग। और इसी तरह क्या हो जाता है, इन रीचिंग सम ऑफ देयर हायर गोल्स, जो उन्होंने अपने गोल्स बनाए होते हैं उसमें वो रीच कर जाते हैं। Problems that language learner face during speaking, students often think that the ability to speak a language is the product of language learning। ठीक है, जितने आप मतलब स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि एबिलिटी टू स्पीक लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जब आप एक लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकते हैं तो ये प्रोडक्ट है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, एक्चुअली ये आउटपुट है कि आप लोगों ने इनपुट कितना किया हुआ है, पढ़ा कितना है। बट स्पीकिंग इज आल्सो अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। लेकिन इसी तरह स्पीकिंग भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा जितना ही आप स्पीक करोगे, स्पीकिंग के ऊपर आप अलग से एक मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे। ठीक है, ये भी क्रूशियल पार्ट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इफेक्टिव instructors teach students speaking strategies using minimal responses। आप लोगों ने responses बहुत कम करनी है। ठीक है, recognizing script, सबसे पहले अपने राइटिंग को समझना है, मुख्तलिफ राइटिंग को, मुख्तलिफ किस्म के जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं उसको, एंड यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, और अपने लैंग्वेज को ही यूज करके लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। दैट दे कॉज to help themselves expand their knowledge of the language and their confidence in using it। ठीक है, can use, क्या है, can use to help themselves expand their knowledge of the language and their confidence in using it। ठीक है, these instructors help students learn to speak so that the student can use speaking to learn। ठीक है, अब क्या है कि यही चीज उनको हेल्प करती है कि वो अपने नॉलेज को वो एक्सपैंड कर ले और बढ़ाए। ये क्या चीज होती है, ये असल में एफर्ट्स करना, जब आप दूसरे लैंग्वेज को समझने सीखने के लिए समझते हो, ठीक है, उसको लर्न करते हो, तो आपकी नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। दीज इंस्ट्रक्टर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न टू स्पीक। यही तो मतलब यही इसी तरह के हेल्प से ही स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्न कर लेते हैं कि एक लैंग्वेज को पढ़ा जाए, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन यूज स्पीकिंग टू लर्न। तो वो इसलिए एक टारगेट लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि वो और सीख ले अगर इफ दे आर कमिटिंग मिस्टेक्स तो उनको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इफ दे आर ट्राइंग टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज तो उन्होंने जो सीखा है वो प्रैक्टिस में लाएंगे और उनको फर्दर मोटिवेशन होगी। ठीक है, Douglas Brown in 2000 identified 8 factors they can make speaking difficult। ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स है 8 फर्दर जो कि हमारे स्पीकिंग को और डिफिकल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले उसमें है क्लस्टरिंग।
क्लस्टरिंग क्या है? फ्लुएंट स्पीच इन इज फ्रेजल, नॉट वर्ड बाय वर्ड। अब जब क्लस्टरिंग का ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें एक साथ जब मिल जाए, क्लस्टर सा बनाए, एक झमगट्टा सा बना ले, ठीक है, उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। अब फ्लुएंट स्पीच जो है उसमें अब कोई नेटिव स्पीकर है तो जब वो स्पीच करेगा तो वो फ्रेजल फॉर्म में होगा, ऐसे वर्ड बाय वर्ड तो हमारी तरह नहीं होगा, ठीक है। Learners can recognize their output both cognitively and physically in brief groups, ठीक है, through such clustering। अब वो क्या करेंगे? अपने लिए रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके अंदर अंदर जो है वो स्पीकर क्या बात करना चाहता है, उससे अपने मायने भी कॉग्निटिव पावर के थ्रू अखज करेंगे। एंड फिजिकली का ये मतलब है कि वर्ड्स वो क्या क्या अटर कर रहे हैं, किस तरह अटर कर रहे हैं, और फिर उनका मैसेज क्या है जो कि कॉग्निटिवली है, ठीक है, और फिजिकली वो वर्ड कौन से और क्या क्या फोकस कर रहे हैं, और उसके अंदर वो कितनी ब्रीथ लेते हैं, पास बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिडंडेंसी का ये मतलब है द स्पीकर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मीनिंग क्लियरर थ्रू द रिडंडेंसी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर्स होते, जो लर्नर्स होते हैं, वो रिडंडेंसी के ऊपर मतलब जो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होता है, जो कि रिडंडेंट होते हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पास जो कि जिनका मतलब अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर भी मतलब वाज़िह होगा। द स्पीकर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मीनिंग क्लियरर थ्रू द रिडंडेंसी ऑफ लैंग्वेज। जो सपोज एक्स्ट्रा वर्बोसिटी की जाए, कोई स्पीकर है वो ऐसी बात करता है कि वो वर्बोसिटी करता है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स का यूज करता है जो कि वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन अपनी फ्लुएंसी शो करने के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको रिडंडेंसी बोली जाती है, जो कि ना यूजफुल होती है ना इन नीड होती है। तो उसमें रिडंडेंसी, रिडंडेंट वर्ड्स को और एक्चुअल मीनिंग कन्वेइंग वर्ड को एक स्पीकर मस्ट जान ले, ठीक है। लर्नर्स कैन कैपिटलाइज ऑन दिस फीचर ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब क्या होता है, वो अपने लर्नर्स जो होते हैं वो अपने मतलब के जो मायने, मैसेजेस कन्वेइंग जो वर्ड्स होते हैं वो अपने लिए वाइल स्पीकिंग वो कैपिटलाइज, जब कोई स्पीक कर रहा होता है या वो खुद स्पीक कर रहा होता है तो वो उस डिफरेंट वर्ड्स को वो कैपिटलाइज कर लेके, इसका तो मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और ये सिर्फ रिडंडेंट वर्ड है। अच्छा, रिड्यूस्ड फॉर्म्स। अब कॉन्ट्रैक्शंस है, एलेजन है, एलेजन भी हमारे पास जैसे कि लेट्स गो, ये भी अब कॉन्ट्रैक्शन में ये है कि कैन नॉट, ठीक है। अब कैन नॉट को हम कैंट में यूज करते तो ये कंट्रैक्शन। अब इलेशंस उसको कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं आई एम, ठीक है, तो और लेट्स गो तो वो उसमें जो लेट्स गो है तो इसको इलेशंस बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन है बिल्कुल, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे अल्फाज जिसका मतलब आप एक वर्ड बीच में छोड़ दो, और आप कुछ पूरे फ्रेज का स्टार्टिंग वर्ड बता दो बाकी छोड़ दो, तो ये भी आ जाता है इलेशन में, ठीक है। रिड्यूस्ड वॉवल्स, बीच में से आप जब मतलब कोई जैसे कि कोई प्रोनाउंस करता है कोई वर्ड और बीच में से वो जैसे कि बॉल, तो ए का हटा के ओ लगा लेते हैं इसी तरह, ठीक है। ऑल फॉर्म स्पेशल प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे, अब कैन नॉट अगर हम यूज करें या डू नॉट यूज करें या आई एम यूज कर ले या ठीक है, ये सब यूज कर ले तो सुनने वाले को आसानी होगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम फॉलो कर लेते तो ये हमारे पास वो ऑब्स्टिकल्स बनते हैं जब हम फ्लुएंटली एक टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु डू नॉट लर्न colloquial contraction can sometimes develop a stilt bookish quality of speaking that in return stigmatized them, ठीक है। स्टिग्मेटाइज देम, स्टिग्मेटाइज का मतलब है कि उसको रोक दिया जाता है, मतलब उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। लाइक उन लोगों को स्टिग्मेटाइज स्टिग्मा से निकला है या लाइक मतलब उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। स्टिग्मेटाइज का मतलब है उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उनको थोड़ा सा डिसअप्रूव किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर है कोलोकियल का वर्ड है, तो कोलोकियल जब वो अल्फाज के अंदर वो जो लाते हैं
खूबसूरती लाते हैं, ठीक है। अल्फाज में खूबसूरती लाने के लिए, बोलने में खूबसूरती लाने के लिए कोलोकियल कंट्रैक्शंस को यूज किया जाता है, जिसमें जिसकी वजह से वर्ड्स के अंदर खूबसूरती आती है। कैन समटाइम्स डेवलप अ स्टिल्ट बुकिश। स्टिल्ट का मतलब है कि ऐसे फिक्स्ड किस्म के वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, मतलब स्टैग्नेंट वोकैबुलरी होती है, ठीक है, जब ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस अगर इस्तेमाल ना किए जाए, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करने चाहिए, ये भी अगर बंदा नहीं इस्तेमाल करा तो ये भी उनके जो है लर्निंग प्रोसेस में लाते हैं, एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास performance variables. One of the disadvantage of spoken language is that the process of thinking as you speak allows you to manifest a certain number of performance hesitation, pauses, backtracking, and corrections. Learners can actually be taught how to pause and hesitate. Okay, for example, in English, our thinking time is not silent. जब हम think करते हैं तो तब हम जरूरी नहीं कि हम silent हो, मे भी हम बोल रहे हो लेकिन साथ में थिंकिंग कैपेबिलिटी भी स्टार्ट हो, जो है वो भी काम कर रही है, वो भी इन वर्किंग है, हमारी कॉग्निटिव पावर भी इन वर्किंग है। वी इंसर्ट सर्टेन फिलर्स सच एज वेल, यू नो, आई मीन, लाइक, ये सारे हमारे पास फिलर्स है जब हम अल्फाज के अंदर, डिफरेंट फ्रेजेस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर हम आगे से लगा लेते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, वन ऑफ द, ये वो है, one of the most silent differences between native and non-native speakers of language is in their hesitation phenomena. कि क्या है कि जो नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स के अंदर जो सॉरी ये सिलियंट डिफरेंसेस है, साइलेंट नहीं, ठीक है, सिलियंट डिफरेंसेस बिटवीन मुख्तलिफ, मतलब मखसूस कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात है इन दोनों के अंदर, कि इस तरह की चीजों में, जैसे कि हम कहते हैं, एक तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जब आप वेल वी टेक अ स्टार्ट, तो ये नेचुरलनेस या फिर नेटिवनेस आपके लैंग्वेज के अंदर लाती है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को अदर बहुत और भी खूबसूरत करता है, ठीक है। आपके परफॉर्मेंस को उसके अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं और फिलर्स आ जाते हैं व्हेनेवर यू एड सच फिलर्स इन योर लैंग्वेज, ठीक है। बस फिलर्स आ जाते हैं, फिलर्स इसी को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि लिटरली ये जो वर्ड्स होते हैं, या यूजुअली इन एडिशन टू, और जिस और भी लगा के हम कोई टैग फ्रेजेस लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, परफॉर्मेंस वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, कोलोकियल लैंग्वेज का तो आप सबको पता है, ठीक है, अभी कोलोकियल का मैंने बता दिया। तो इसका है, मेक श्योर योर स्टूडेंट्स आर रीजनेबली वेल acquainted with the words, idioms and phrases of colloquial language and those they get practice in reducing these forms, ठीक है। अब colloquial language वो होता है जो स्टूडेंट्स को, मतलब जब वो लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं तो उनमें जरूर एक्वेंटेड, they do know, they are aware about different words, idioms, phrases and other colloquial language, जो अगर वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे उनके अपने काइंड ऑफ लैंग्वेज क्रिएट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इस इंटरेक्शंस को, ये जो ऑब्स्टिकल्स है, इसको पढ़ लेंगे तो फिर एक और क्लास हमारी रह जाएगी जो कि एक्स्ट्रा क्लास कंसिडर होगी, ठीक है। तो उसमें हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिलीवरी, ये भी मैं आई ट्राई कि मैं साथ में पढ़ा लूँ, ठीक है। चलिए इसकी मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। लेट मी रीड इट।
2. Okay, just only 3 points are left to her. So rate of delivery. Another salient characteristic of fluency is rate of delivery. One of the language teacher's task is teaching spoken English is to help learners achieve an acceptable speed along with other attributes of fluency. अब ये नहीं है अब ये नहीं है कि रेट ऑफ डिलीवरी कि किस तरह किस स्पीड के साथ वो जल्दी से रिस्पांस दे रहे हैं, वो फ्लुएंसी तो ठीक है, फ्लो उनकी अच्छी है, लेकिन अब उनका रेट और स्पीड जो है स्पीकिंग वो भी अगर तेज है तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जो है कॉम्पिटेंट है। लेकिन अगर रेट ऑफ डिलीवरी उनकी कम है तो ये भी एक किस्म का बैरियर है। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका जो आप लोग का रेट है डिलीवरेंस का अगर वो हाई है तो इससे और वो अंडरस्टैंडेबल भी है तो इससे भी ठीक है, आप लोगों का पता चल जाता है कि यू आर फ्लुएंट इनफ इन द यू आर प्रोफिशिएंट, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ इन द टारगेट लैंग्वेज। लेकिन अगर वो रेट फ्लुएंसी है लेकिन रेट आप लोगों का जो डिलीवरेंस स्पीड है वो लो है, तभी अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे को अभी फर्दर लर्निंग कर लेनी चाहिए। स्ट्रेस है, रिदम है, इंटोनेशन है। ठीक है, so this is the most important, ये intonation stress ले आना whenever you want to give emphasis to certain part of your sentence or certain points, or you want to make a kind of emphasis over a word, तो आप लोग क्या करते हो उसके ऊपर स्ट्रेस डाल देते हो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, द स्ट्रेस टाइम्ड रिदम ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड इट्स इंटोनेशन पैटर्न कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आप स्ट्रेस डालते हो, आप रिदम उस वर्ड्स के अंदर लाते हो, इंटोनेशन जो उतार चढ़ाव बातों के अंदर होती है उससे क्या हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे होता है कि आप लोग वेल लर्नड हो। फिर आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हमारे पास एज बैरियर है, ठीक है, ऑब्स्टिकल है। लर्निंग टू प्रोड्यूस वेव्स ऑफ लैंग्वेज इन अ वैक्यूम विदाउट इंटरलोकेटर्स would rob speaking skill of its richest components, creativity, conversational negotiation। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेते हो, लर्निंग टू प्रोड्यूस वेव्स ऑफ लैंग्वेज इन वैक्यूम। अब वैक्यूम वो वाला खला वाला वैक्यूम नहीं है, मतलब आप लोग जब बात करते हो तो उसमें आप लोग एक ऐसे इंटरेक्शन जब करते हो तो वो बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में होता है कि व्हेन यू आर हैप्पी तो आप उसी तरह स्माइल, जेस्चर्स, फीचर्स, आपका जो साउंड होता है वो उसी तरह वेव करता है। बट वेन एवर यू आर अपसेट और यू आर इन पेन तो आप उसी तरह, और इन थैंक्स तो आप उसी तरह एक्सप्रेस भी कर लो। तो आपके आप जो वैक्यूम है, जो हवा के अंदर आपके वेव्स आपके साउंड के वेव्स जो जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हो, विदाउट इंटरलोकेटर्स। ठीक है, मतलब
इंटरलोकेटर्स तो सबको पता है। इंटरलोकेटर्स का मतलब है जब आप, जो बहस करने वाला बंदा होता है, जो बातचीत करने वाला बंदा होता है, उसको इंटरलोकेटर कहा जाता है। लोक्यूटर भी बोलते हैं, लोकेटर, इंटरलोक्यूटर, ठीक है। इंटरलोक्यूटर ही बोला जाता है क्योंकि सी के बाद यू है, इंटरलोक्यूटर। अच्छा, जो बातचीत करने वाला बंदा होता है वो तो अब कोई सामने भी है भी नहीं, लेकिन whenever कोई आपसे वापस मतलब रिस्पांस में नहीं है, रिस्पांस में कोई आपके सामने कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आप जब बात करते हो तो अच्छे से करते हो। और वो ड्रॉप स्पीकिंग स्किल ऑफ द रिचेस्ट कंपोनेंट्स। अब ये है कि जब इसी तरह आप लोग है किसी दूसरे लिसनर की मौजूदगी या फिर आपके साथ जो इंटरेक्शन रखता है, आपको जवाब रिस्पॉन्सेज देता है, कोई इंटरलोकेटर बातचीत करने वाला आपके साथ नहीं है, आप खुद अकेले हो, लेकिन आप दूसरे टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्रेशन कर रहे हो अपनी फीलिंग्स का, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रोप। रोप का मतलब है whenever you theft something, whenever you रोप समथिंग, मतलब आप जब किसी से कोई चीज चुरा लेते हो, तो आप बिल्कुल जो रिचेस्ट कंपोनेंट है, जो नेटिव लाइक एक्सेंट है, आप उसी से मतलब नेटिव स्पीच को, नेटिव एक्सेंट को आप चुरा के बात कर रहे थे। द क्रिएटिविटी ऑफ कन्वर्सेशनल नेगोशिएशन, और यही वो तरीका है कि आप लोग कन्वर्सेशन नेगोशिएशन कर सकोगे, ठीक है, परफॉर्म कर सकोगे, बना सकोगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग टास्क, कम्युनिकेटिव आउटकम्स, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी तरह ये हमारे इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी, वो वाली क्लास लास्ट क्लास होगी, होप सो। और मैं चाहती हूँ कि उस क्लास में आप सब इकट्ठे आ जाए, ठीक है। तो मंडे को शायद वो क्लास हम ले लें, या फिर कल ले लें, होप सो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है उस क्लास में सब एक्टिव होंगे। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी एक दिन पहले, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के अंदर इस टाइम के, इस टाइम पर, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, जिसमें आप लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन करना है और लाइव क्लास में आना है, ठीक है। तो फिर आपका जो सब उससे रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स, या खैर क्वेश्चन बैंक तो मैं नहीं दे रही, लेकिन टॉपिक्स और सब वो मैं बता दूंगी, ठीक है, कि आपने कौन सा स्टडी करना है, कौन सा नहीं, और क्या क्या पेपर का हिस्सा होगा और कौन सा नहीं। चलो वो सेकंड लास्ट क्लास में होगी, जिसमें आप सब लाइव होंगे, एंड होप सो दैट विल बी ऑन मंडे समवेयर, ठीक है। लेकिन जो अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके लिए मैं, डोंट वरी, मैं यूट्यूब पे आप सबकी डिस्कशन, जो हमारी कोलैबोरेशन से जो क्लास होगी, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक और इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।